और अब आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी यवर की रिपोर्ट जो उन्होंने हमें भेजी है। Heavy blasts were reported near the gunfight site in the Kokernag. In fact, you can see that the security forces are now engaged in a fierce exchange of firefight that ensued yesterday, and after a lull, now this fresh firing has taken place there. The search operation was intensified since the morning, and these are the continuous blasts you can heard that the operation has been finally on the track and resumed, and it seems that the contact has been established with the hiding militants. Remember that already the security forces have to bear the casualties of the commanding officer major as well as the DSP of J&K police, and in fact after that the reinforcement were pressed into service. Since the morning, army, stop brass and police they were monitoring the situation, and now the exchange of fight has once again engulfed in the dense forest of the Kokernag. तो इस रिपोर्ट में भी साफ तौर पर जो फ्रेश फायरिंग हो रही है वो साफ सुना जा सकता है। बहरहाल आपको बताएं, इस एनकाउंटर में भारतीय सेना के जवानों की शहीद होने के कुछ घंटे बाद जम्मू में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन भी शुरू हो गए। बीजेपी की युवा मोर्चा और डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज किया। पाकिस्तान 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 Group. They are providing them logistic support. Guzar Khan is also said to be trapped. So the operation is continuing. With the first break of flight, operation was conducted once again. Just short while back, the contact was once again established. And you can hear in this deferred visuals also staccato of gunfire from both the sides. With the assault rifle, they are targeting our bravehearts, and our bravehearts are giving them a befitting reply. Because already the message has been sent to the commanders on the ground. One, that the supreme sacrifice of our bravehearts will neither be forgotten nor forgiven, and that martyrdom will be avenged. That's one of the reasons that they have made up their mind that they are going to pin down these terrorists at earliest. We know that Pakistan is completely unnerved and rattled ever since there had been G20 summit meeting here, followed by opening of cinema hall, then footfall of the tourists have also increased, and now the government of India is going to have the Miss World contest also organized in Kashmir Valley in the coming months, where 130 countries are going to participate. So they do not want to see peace and prosperity. That is not palatable to Pakistan. Let me show you. Here you can see a large number of youngsters from one of the schools. They're holding candle in their hand. They're offering special prayers, paying homage to all those martyrs and bravehearts who sacrificed their life, which is big. They are just paying homage to their indomitable spirit, because we have seen since 1947 how these youngsters have been laying down their life. They are giving their youth for our best tomorrow. Tan Tiranga, Man Tiranga, Rahat Tiranga, Chahat Tiranga, Jeet Ka Vishwas Tiranga. And for that Tiranga, they are even sacrificing their life. If you look at the picture of Humayun Bhatt, which they are holding, that deputy superintendent of police, look at this picture. I think this is a message to all those netas who were saying that after abrogation of Article 370, there will be no one to hold tricolor in their hand. Here is an officer from Kashmir Valley who sacrificed his life for Tiranga, who sacrificed his life for motherland. India, here these youngsters offering prayers. क्या कहना चाहेंगे जो ये आप प्रेयर्स कर रहे हैं हमारे बहादुर जवानों के लिए? हमारे लिए प्राउड मोमेंट भी है और थोड़ा सैड मोमेंट भी है, क्योंकि किसी के घर में किसी के बेटे ने अपनी जान गंवाई है, किसी के पापा, किसी का बेटा, का भाई बहन, उनके लिए सैड मोमेंट भी है। बट ये भी है कि उनको खुशी भी होगी इस बात की कि हमारे बेटे ने देश के लिए कुछ किया है। यही कहना चाहूँगी मैं। तो जम्मू से आप लाइव देख रहे थे, हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। एक तरफ जहां हमारे जवानों की शहादत हुई है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें जो तमाम लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो जम्मू से हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता को आप लाइव देख रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हमारे सहयोगी गुरप्रीत ने पानीपत में मेजर आशीष के परिजनों से, परिवार वालों से बातचीत की। आपको यहाँ बताते चले कि मेजर को इस साल सेना पदक से सम्मानित किया गया था। भाई दुख बहुत हो रहा है इस बात का। हम पीड़ित हैं बहुत ज़्यादा। वो छुट्टी आना था, लेकिन जो देश के लिए उसने काम किया वो तो उसकी ड्यूटी थी। हम लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मैं इतना ही करता। बात हुई थी वो लगभग 1 महीना पहले हुई थी। उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला, सेना मेडल मिला था, तो वो बहुत खुश था। कह रहा था कि
देश के 1-2 दुश्मन कम कर दिए, मेडल मिला है तो बहुत खुश था। वहीं आपको बता दें कि हमारे सहयोगी मनोज ने कर्नल मनप्रीत के परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान परिजनों ने बताया कि कर्नल मनप्रीत ने सेना में 17 साल सेवा की थी और वो राष्ट्रीय राइफल्स में अपना कार्यकाल 4 महीने में पूरा करने वाले थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह कल शहीद हुए हैं। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर पे पहुंचेगा। मेरे साथ मनप्रीत के भाई हैं संदीप, उनसे बात करेंगे। संदीप जी, ये बताइए कि क्या जानकारी सेना की तरफ से अब तक दी गई है और कब तक आपको यहाँ पर पार्थिव शरीर को लाया जाने की जानकारी कल मिली? बात हुई थी, उनके कोलीग्स के फ़ोन आ रहे थे, बता रहे थे वो, और आज सुबह बात हुई उनके आने के लिए, तो कह रहे थे कि अभी हमको वेट करना पड़ेगा, हम अपना यहाँ पे जो भी कार्रवाई होती है वो कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते हमें। हाँ जी। अंतिम बार परिवार की कब बात हुई थी? फ़ोन पे बात होती रहती थी, मदर घर पे हम उनसे बात होती रहती थी डेली। मेरे साथ 2-4 दिनों में मतलब बात होती रहती थी। परसों मेरी बात हुई थी उनसे दोपहर 12 बजे, तो कल फ़ोन किया तो कल उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं 12 बजे दोपहर को दोबारा, तो शाम को दोबारा ट्राई किया तो स्विच ऑफ हो रहा था जब पता लगा इसके बाद। तो सेना की तरफ से क्या बताया गया था आपको पहले? अभी तो कुछ भी नहीं, कल एक मिनट जी। कल से तो बस वो कम्युनिकेट कर रहे थे यही कि जो भी न्यूज़ फ्लैश हो रही है कि बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा ध्यान रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम साथ हैं आपके। आज उन्होंने बाकी सुबह इन्फॉर्मेशन दी थी कि अभी हम यहाँ से कार्रवाई निपटा रहे हैं, कितना टाइम लग सकता है कुछ कह नहीं सकते इसके। सेना जो मेडल भी उनको मिला था। मनप्रीत सिंह के बारे में बताइए, किस तरीके के इंसान थे? एक कमांडिंग ऑफिसर थे, अपनी टीम को लीड कर रहे थे, बड़ी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया। हाँ जी बिल्कुल, सेना मेडल उनको 1.5 साल पहले मिला था जी, और उसके अभी न्यूज़ वगैरह फ्लैश हुआ था काफ़ी, तो बाकी पब्लिक को पता है, उनके कोलीग्स इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, उनके जूनियर्स उनके सीनियर्स उनको ज़्यादा पता है जिनके साथ हैं वो। अंतिम संस्कार यहीं करेंगे पैतृक? हाँ जी। सेना से अभी जानकारी पहले बोलते थे भी आज शायद उसका जो मृतक शरीर आ जाएगा 2-2:30 बजे, पर बाद में फिर फ़ोन आया भी उनसे भी शायद कल नहीं आएगा, मौसम की गड़बड़ी से भी परसों, शायद अभी तक कुछ नहीं पता चला। अब परिवार में बता दिया गया सबको, क्योंकि रात तक ये कहा जाता कि पत्नी को और कुछ को नहीं बताया गया। अब हाँ, कल सबसे पहले हमारे को खबर मिली थी, मेरे बेटे को भास्कर से मोबाइल में न्यूज़ आई थी, तो बेटा बोल रहा डैडी उधर पता करो जाके। यहाँ पता किया, किसी को कुछ पता नहीं था, तो इनकी मम्मी को भी नहीं बताया अभी ये बात होगी। फिर इन्होंने बोला भी कोई बात है जो आप चुप चुप हैं, फिर इन्होंने जोर दिया भी मेरे को बताओ। फिर हमने उनको थोड़ा सा ऐसा किया भी वहाँ अनंतनाग में बहुत जो भयंकर युद्ध चल रहा है, इसलिए वहाँ ना तो फ़ोन जा रहा है ना ही कोई संपर्क हो रहा है।